the Andamans, but it's one of the most beautiful places on this planet, literally paradise. We're very far away from the mainland, but we are very close to everyone's hearts. We hope that you will all enjoy today's presentations. It's been prepared by some of the finest talent that we have in these islands. And the people who are participating are all very young people. They have put their heart and soul into this presentation. In fact, recently we had a cyclone which also hit Philippines. Thousands of people died in the Philippines, but we also felt the cyclone in Port Blair. And yet our students and our children and our artists, they were determined to have the rehearsals in an identical open-air environment. So even though it was raining heavily, even though there was a torrential downpour, all of them continued with their rehearsals. And I think this is a wonderful testament, not just to the spirit of the youth in our country today, but also to the young people of the Andaman and the Nicobar Islands. It's also my deep, deep privilege and gratitude to welcome all our honorable dignitaries and VIPs who are here today. We have the Honorable Lieutenant Governor, Lieutenant General A.K. Singh, sir. Thank you so much for being here today, and his very gracious wife, Mrs. Suniti. Thank you, ma'am. We have the MP from the islands, Mr. Bishnu Padare. Thank you, sir. Aaj aap aaye hain. And his gracious wife, Mrs. Rupa Ray. We also have, and it's wonderful to see, sir, two former Lieutenant Governors of these islands, Mr. M.L. Kampani, thank you, and Mr. I.P. Gupta. Thank you so very much. You have honored us today with your presence over here. I'd like to now request, how can I forget, I'm sorry, gracious and most important VIP, Miss Gul Panag, a former Miss India, and not just Miss Beautiful Smile, but a woman, I think, who is the epitome of beauty and brains. We've all heard about her, we've seen her, and she's really so beautiful in real life. I think it's wonderful. The moment she entered, everyone stopped what they were doing just to look at her. A woman of substance, a woman of talent, a woman who's making a difference and making all Indians, I think, proud to have someone like her as a fellow Indian, an ardent environmentalist, a keen sportswoman. I think what has touched all of us is that she's an ardent supporter of the rights of women, and I think children also in that, especially the girl child. So, Ms. Gul Panag, it is entirely our privilege. We hope to see you at many more functions. We'd like to give you a very warm welcome to the Andamans and for today. And we'd like to convey to you how privileged and happy we are that you're doing so much for the cause of women. She is, of course, you might have seen her in many films also, brilliant portrayal for which she has won many awards in Dore. So we look forward to seeing you in other films today. It's now my privilege to request some of our dignitaries to come onto the stage to light the lamp, and it's going to be a massive blow for women's empowerment. So the first person I'll be calling actually is Mrs. Suniti Singh. Ma'am, if you would like to come to the stage for lighting the lamp, ma'am. Also like to request, ma'am, Mrs. Rupa Ray, if you would like to come. Our guest of honor today, Ms. Gul Panag, and Mrs. Anand Prakash, ma'am. It's an all-women's affair today. Please do come up. Thank you so very much. Come, ma'am.
Before we start, just a few brief words about the cultural program. We will be starting with a short segment which details the history of the Andaman. We call them back. देश की आजादी उपलब्धि है उन हजारों सेनानियों के अविस्मरणीय बलिदान की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को अनुग्रहित किया। उन सभी जाने अनजाने सेनानियों को शत शत नमन, जिन्होंने सर पर कफन बांधे इस महासमर में हिस्सा लिया और अपने प्राण न्यौछावर किए। ये कार्यक्रम ऐसे ही जांबाजों को समर्पित है। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। 57 की जंग में फिरंगी फिदा बुलंद जब किया था सभी ने आवाज। सन 1857 आजादी का बिगुल बज चुका था। उसके साथ ही शुरू हुआ था अपनी मातृभूमि पर मर मिटने को तैयार देशभक्तों को काले पानी की सजा का सिलसिला। आजादी गुनाह है बताया गया था, आजादी गुनाह है बताया गया था। हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। सजा कुछ न पाई समंदर के पार से मीरामिज़ में फिर होके वो सवार वतन के जल पड़ा था दीवाना। अथाह समुंदर पहुंचा जो जहाज, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज। अथाह समुंदर पहुंचा जो जहाज, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज। नवाजा था माँ बाप ने भी दुआ से, कह कुछ न पाया वो बच्चों की माँ से। रवाना हुआ
अंडमान का वीराना, अंडमान का वीराना। 10 मार्च 1858 भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वो अविस्मरणीय दिन जब सेवीरामीज जहाज से द्वीपों में पहुंचे 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे ने इस मिट्टी को अपने कदमों से पाक किया। आबाद की वतन के फरिश्तों ने जाकर न खुशियां थी कोई, न था कोई मातम। नारायण था पहला शहीद अंडमा का, निरंजन फजल हक बहादुर या भीमा, सभी ने वतन के लिए जिंदगी दी, इसी सरजमी के लिए रोशनी दी। न पानी था न रहने का ठिकाना, न पानी था न था रहने का ठिकाना। अत्याचारों का सिलसिला और अंडमान में देशभक्तों के आने का सिलसिला साथ साथ चलता रहा। उस समय द्वीपों में कोई जेल न होने पर भी बंदी उपनिवेश के नियमों को न मानने वालों के लिए वाइपर द्वीप में एक जेल और फांसी घर का निर्माण कराया गया, जहां सजा याफ्ता देशभक्तों को एक साथ उनकी बेड़ियों से होकर गुजरने वाली एक जंजीर से बांध कर रखा जाता था। हजारों को कैद कर यहाँ लाया गया था, अबरडीन में कितनों को मारा गया था। पुरी के महाराज भी आए महावीर, मणिपुर से भी आए थे सेनानी, सितम पर सितम बहुत बढ़ चला था। उसी वक्त शेर अली फांसी चढ़ा था। बड़ी मुश्किलों से मिला वो दाना, बड़ी मुश्किलों से मिला वो दाना। देशभक्तों के खून पसीने से चाथम, रॉस और वाइपर द्वीपों के साथ साथ पूरे बंदी उपनिवेश में बलिदान का इतिहास लिखा जाता रहा।
सन 58 जो लाए गए थे यहाँ सन 58, उन्हीं खुशबुओं से बना ये मधुबन। हजारों सितम इम्तिहा से गुजर के उसी ने बनाई भयानक सेल्यूलर। 20वीं सदी शुरू होते ही फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र केस, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौर बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र केस, कोई एक मामला था। गिनाते चले जाओ, सूची बढ़ती चली जाएगी। कैसे शानदार लोग थे, मस्ती से झूमते, गीत गाते, जेल में कदम रखते, मानो जेल में नहीं मंदिर में जा रहे हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है दौर कितना बाजुए था दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आत्मा, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आत्मा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत तुझ पे एक निशान, ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत तुझ पे एक निशान। अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सजा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सजा से भी ज्यादा काम और काम का कोटा कैदियों पर भारी पड़ता, खास तौर पर जब कैदियों को तेल के कोलू में जोत दिया जाता। बंदी घर की इस मनहूसियत और अकेलेपन में कैदियों के दुखते हुए अंगों और जलते हुए दिलो दिमाग पर किसी चिड़िया की चहक मरहम का काम करती, किसी मेंढक का टर्राना संगीत जैसा मालूम होता। और यूं जिंदगी का ढर्रा बदस्तूर जारी रहता। न मुंह छिपा के जिए और न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। बस एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों कि हम जहां में मशालें जला जला के जिए। सितंबर 1937 से सेल्यूलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। मगर एक और जालिम दौर जल्द ही शुरू होने वाला था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
1842 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान यहीं नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया था। आजाद भारतीय भूमि पर लहराने वाला ये पहला तिरंगा था। अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आखिरकार खत्म हो गया। सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलां मातरम वन्दे मातरम। झर नदियाँ तर तर चलती पवन शुभ तेरे मातम वन्दे मातरम। जंगल जंगल गाली डाली चांदनी पर से सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वन्दे मातरम वन्दे मातरम। करता तेरी आरती ऐसी तेरी भक्ति हो तेरे रूप साक्षात है तेरे करोड़ों साथ है तेरे करोड़ों हाथ है जिनमें तेरी शक्ति है सारे ही सागरों के तत्व है तेरी प्रचंडता तेरा हर हर क्षेत्र है प्रचंडता। तू धरती
अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ अंडमान को बनाने संवारने का दौर। अंडमान निकोबार का निकोबारी समुदाय मुख्य धारा से जुड़ने लगा था। आजादी से पहले बर्मा से करें समुदाय के लोगों को यहां लाकर बसाया गया। आजादी के बाद विभिन्न रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत और रोटी रोटी की तलाश में आए तमिल, बंगाली, छोटा नागपुरी आदिवासी और तेलुगु समुदाय के लोग। इन सबके द्वीपों में बसने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी मिली जुली संस्कृति के लिए जाना जाने लगा।
লাগিও তলারে শালপিয়ালির গুমথি কাউরি জংলা নদীর পারেতে তোর সঙ্গ লই ঘুরঘুর করুম এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক দূর দূর তোর ওই মনটা লয়া যাবো বাগানটায় লাল হলুদ ফুল দিয়া বই ধান দিব খোপায় দূর দূর তোর ওই মনটা লয়া যাবো বাগানটায় লাল হলুদ ফুল দিয়া বই ধান দিব খোপায় সাধের কীর্তিমা গোড়া রাখুন চোখের তারাটায় রানী হইয়া রইবি মরি হু হু পরানটায় ছলক ছলক ময়না ছলক ছলক চলে রে পিছন পানি চেনা রে মন ঢুক ঢুক করে রে তোর লাগিও তলারে শালপিয়ালির বংশী কাউরি জংলা নদীর পারে হেতে তোর সঙ্গ লই ঘুরঘুর করুম এই বাসনা প্রাণে ময়না ছলক ছলক కొమ్మను చూడు పావురాల జంటను చూడు అన్యం పుణ్యం ఎరుగని మన్యం కొండల్లో కోయిలాలు కొమ్మను చూడు పావురాల జంటను చూడు అన్యం పుణ్యం ఎరుగని మన్యం కొండల్లో కోయిలారే 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 కోయిలారే
सितंबर 2004 की सुनामी में हमने बहुत कुछ खोया। ये दृश्य सुनामी से हुई तबाही को दर्शाते हैं। यूं लगा जिंदगी रुक सी गई है, लेकिन हम फिर उसी जोश के साथ उठे और अपनी जमीन को मिलकर संवारने लगे। लोगों को फिर से लगने लगा, ये जमीन मेरी जमीन, तेरी जमीन सबकी जमीन, ये न हो तो हम क्या हैं, ये हमारी जन्नत है। ये जमीन मेरी जमीन, तेरी जमीन सबकी जमीन, ये रहा तो हम क्या है, ये हमारी जन्नत है। तू नहीं डर बस दुआ कर, साथ साथ मिलकर इस जमीन को सहारे, इस जमीन को निखारे, ऐसे से बहारे, इस जमीन को सहारे। जमीन मेरी जमीन, तेरी जमीन सबकी जमीन, ये ना हो तो हम क्या है, ये हमारी जन्नत है। तू नहीं डर बस दुआ कर, साथ साथ मिलकर इस जमीन को संवारे, इस जमीन को निखारे, लाए फिर से बहारे, इस जमीन को संवारे। खुशबू है सागर की, आशा में हमारी चाहत है बदले की। तू नहीं डर बस दुआ कर, साथ साथ मिलकर इस जमीन को संवारे, इस जमीन को निखारे, लाए फिर से बहारे, इस जमीन को संवारे। ये जमीन मेरी जमीन, तेरी जमीन सबकी जमीन, ये न हो तो हम क्या है, ये हमारी जन्नत है। जमीन को संवारे, इस जमीन को निखारे, लाए फिर से बहारे, इस जमीन को संवारे। तू मेरी जान है,
and foreign tourists as an emerging adventure tourism destination. The Andaman Islands beckons you to a variety of adventure tourism like scuba diving, sea walk, snorkeling. It helps you to explore the incredible and exhilarating and breathtaking underwater marine life. A seaplane ride awaits you to enjoy the runway on the sea. A variety of adventure water sports welcomes you like speedboating, jet ski rides, kayaking, windsurfing, bumper boats, water scooters, etc. The Emerald Islands of Andaman and Nicobar presents ample opportunities to get drenched in the jolly spirit of fun-filled, pulse-pounding adventure sports like island camping and trekking. Hobby fishing or game fishing in the Andaman Islands attracts tourists in large numbers. A few years from now, you may be disappointed by the things you did not do than the things you did. So dear friend, sail away from the safe harbor, catch the wind in your sail. Come, explore, dream and discover the awesome and refreshing Andamans. So after a fun-filled day of pulse-pounding adventure, which will fill your life with thrills and a new kind of energy, you can relax and enjoy the rhythmic salsa on the beach in the Andaman style. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, दुनिया को भूल कर खो जाए हम यहाँ। ना कोई सरहदें, ना कोई दीवार है, हम दिल में गपाड़ की मीठी पुकार है। ज़ुबानें मुख्तलिफ, मज़हब भी है कई, लहरें पुकारती, आ जाओ सब यहीं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, दुनिया को भूल कर खो जाए हम यहाँ। ना कोई सरहदें, ना कोई दीवार है, हम दिल में गपाड़ की मीठी पुकार है। ज़ुबानें मुख्तलिफ, मज़हब भी है कई, लहरें पुकारती, आ जाओ सब यहीं। Sing together, welcome to Andamans, welcome to Nicobar, welcome to Sumatra, welcome to Cabo Bay, welcome to Saddle Peak, welcome to Baratara, welcome to Andamans, welcome to Nicobar. Andaman, welcome to Nicobar, welcome to Andaman, welcome to Nicobar, welcome to Andaman, welcome to Nicobar, welcome to Andaman, welcome to Nicobar.
मैं चाहूंगी कि आप सब एक बार जोरदार और तालियां बजा दें हमारे कलाकारों के लिए। कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? अच्छा लगा तो और जोरदार तालियां बजा और चिल्ला के कहिए कि अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और अब एक और बात, खास बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी। अंडमान निकोबार के बारे में हमारे कलाकार भी हैं, साथ ही साथ आपको एक बार और बताना चाहूंगी कि अंडमान निकोबार के लिए एक जमाना था जब कहते थे कि हाय हम जिस पे कि तैयार थे मर जाने को, हाय हम जिस पे कि तैयार थे मर जाने को, यक बयक हमसे छुड़ाया उसी का आशानी को। आसमां क्या यही बाकी था गज़ब ढाने को, ला के गुर्बत में जो रखा हमें तड़पाने को। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। लेकिन दोस्तों, आज जमाना पूरी तरह से बदल चुका है और आज लोग कहते हैं कि गीता कुरान बाइबल का, गीता कुरान बाइबल का जहां सार होगा, कलयुग में उसी का नाम अंडमान निकोबार होगा। आपकी जोरदार तालियों में मैं मंच पर दावत देना चाहूंगी अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के हर दिल अजीज, डायनामिक और बहुत ही एनर्जेटिक एक मिशन के साथ जो आए हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। बहुत जोरदार ताली में उनका स्वागत करें मंच पर। माननीय अजय कुमार सिंह जी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नए, कह सकते हैं आप, नए और डायनामिक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्होंने अंडमान निकोबार को आगे चलकर एक बहुत सुंदर दिशा की ओर ले जा रहे हैं सर। साथ ही साथ मैं मंच पर दावत दे रही हूं मैडम सुनीति सिंह जी को भी। मैम, आप प्लीज मंच पर आएं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ अंडमान निकोबार द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद रे जी भी हैं। सर, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हम गलत हो जाएंगे अगर मैं मंच पर ना बुलाऊं मैडम गुल पनांग जी को। मेरे ख्याल से कई सारे लोग उनके इंतजार में यहाँ हैं। मैम, आपको मैं सब अंडमान आइलैंडर्स की तरफ से, साथ ही साथ दिल्ली वालों की तरफ से भी अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज आप भी स्टेज पर लाएं। आप हमारी बहुत ही खास मेहमान हैं। मैडम गुल पनांग जी, मिसेस रूपा रे जी, मैं अंडमान निकोबार प्रशासन के चीफ सेक्रेटरी साहब, को भी मंच पर यहाँ बुला रही हूँ। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि यहाँ बहुत ही हमारे साथ PRI मेंबर्स और यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको मंच पर दावत दे रही हूँ। श्री के गणेशन, चेयरपर्सन पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, जोरदार तालियों में इनका मंच पर स्वागत करें। मिस मरियम बीबी, जिला परिषद अध्यक्षा साउथ अंडमान, मिस्टर श्रीनिवासन, जिला परिषद अध्यक्ष नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान। साथ ही साथ मैं मंच पर आने की दावत दे रही हूं साउथ अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री अमृत आनंद राज को, उपाध्यक्ष नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान मिस्टर सोनी थॉमस को, सीनियर वाइस चेयरपर्सन मिस्टर IP सिंह, जूनियर वाइस चेयरपर्सन PBMC मिस भारती। आप सब कृपया कर मंच पर तशरीफ लाएं और हमारे बच्चों के साथ, हमारे कलाकारों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ्स के साथ साथ मैं दोनों ही ट्राइबल लीडर्स, हमारे जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनको भी यहां मंच पर बुलाना चाहूंगी।
आज के हमारे कार्यक्रम के बहुत ही दो खास और मेहमान हैं अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर, फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर एमएल कंपानी जी और मिस्टर आईपी गुप्ता जी। आप दोनों से भी मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं और हमारे बच्चों के साथ फोटोग्राफ लें। The Honorable Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands, Lieutenant General A.K. Singh, former Lieutenant Governors, dignitaries, and ladies and gentlemen. I'd like to thank the Andaman and Nicobar administration for inviting me here. It is indeed an honor and a privilege to be the guest of honor. I had the good fortune of going to Andaman and Nicobar Islands a few months ago, and being an avid traveler, I can definitely tell you that having traveled the world, Andaman Nicobar Islands remains one of the most beautiful places in the world, and you're very, very lucky to be from there. I urge everybody here present today to make it their next holiday destination. जब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह गई थी तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो मुझे दिखाई ही दे रही थी, सबको दिखाई देती है, लेकिन जो खासियत वहाँ की है वो है वहाँ के लोग, उनका प्यार, उनकी मेहमान नवाजी ने मेरा दिल जीत लिया। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोगों को मैं उस टाइम तो शुक्रिया नहीं कर सकी, लेकिन अब ये मौका ज़रूर लूँगी उनका शुक्रिया अदा करने का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवा युवतियों को इस तरह इतना टैलेंटेड परफॉर्मेंस स्टेज पर पुट अप कर देखकर मुझे लगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है भारत में, चाहे इतनी ही दूर क्यों ना हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, टैलेंट की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप एक बार फिर इनके लिए जोरदार तालियां दें, जोरदार। आखिरकार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह का कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते। थैंक यू मैम।